Good morning students, welcome to the video lecture number 2 on electricity of a class 12th. In the previous video lecture we learned about the electric current, drift velocity and derivation of a drift velocity. Current is directly proportional to the drift velocity as well as the resistance of the conductor R is equal to this derivation R is equal to ml n e square a into this tau, relaxation time tau. So this R is known as a resistance. तो this अभी हम थियरी ऑफ द रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में, और रेजिस्टेंस का व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. उससे रिलेटेड सम न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज द current electricity? It is a flow of the charges across the conductor. उससे पहले देखेंगे ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ, this is a relation between the Ohm's law is a relation between the current and potential difference and current relation. It is a directly proportional relation. This relation is known as a Ohm's law. In a Ohm's law, the V is at constant temperature. At constant temperature, potential applied across the conductor is directly proportional to current passes in a closed circuit. So V is a directly proportional to I. V is equal to I into this R, or V divided by R, this ratio, this is the constant, and this constant is known as a resistance. So this ratio is always constant. Potential versus current, the ratio is always constant, and this constant is known as a resistance. So what is the resistance? Resistance of a conductor, it is a opposition offered to the flow of charges. This is the opposition offered to flow of charges. जो कंडक्टर के अक्रॉस जो चार्ज फ्लो होता है उसको ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, दे कोलाइड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. So due to the collision they lose their energy, some kinetic energy is lost, means ultimately their speed will be decreased. Yeah, drifting velocity is decreased. Drift velocity decreases means current is decreases. So due to this collision their motion is opposed. So this opposition is known as a resistance. So in a conductor opposes the flow of the current which is a very low value, but insulator having a very high resistance, कि उसका resistance बहुत high रहता है, they are not a conductor, or it opposes the more flow of the current, or they will not pass the current through it because of a large resistance or high resistance. The resist opposition offered to the flow of the current. So this resistance, तो अगर रिलेशन देखेंगे या तो V वर्सेस I अगर ड्रॉ करते हैं तो दैट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन. सो V is directly proportional to R. So this is the straight line graph, is a Ohm's law. At a constant temperature, this is a condition is at a constant temperature
potential is directly proportional to the current passes through in a closed circuit. The factors on which value of R resistance depends किस किस के ऊपर ये डिपेंड करता है, ऑन विच फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स. अभी यहाँ देखेंगे तो दिस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. जैसे लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मीन्स इट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मतलब एक को क्या, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, सपोज ये कंडक्टर थी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको दिखाएंगे क्या, डिनोटेड बाय द कैपिटल ए. आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल, and fourth is a temperature. These are the four factors. अगर ये कंबाइन करते तो एक फॉर्मूला बनेगा इसका, कैसे, when R is directly proportional to L and inversely proportional to area of the cross section, R equal to is directly proportional to L and inversely proportional to area of the cross section. So R equal to the proportional constant यहाँ रखेंगे, तो दिस इज ए रो L डिवाइड बाई ए. रो इज नॉन एज ए रजिस्टिविटी, ऑफ ए कंडक्टर. अब यहाँ रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, इसका यूनिट लिखेंगे तो रो इक्वल टू क्या आएगा, रो इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल. आर का ओहम, ये एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, दिस विल कैंसिल. सो दिस इज ए ओहम मीटर इज ए यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी. ओहम मीटर इज ए यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस हाई है, तो रेजिस्टेंस का रीजन क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अक्रॉस द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अक्रॉस जब फ्लो होता है तब क्या होता है, दे कोलाइड विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा कोलिजन आए. तो इसका मतलब जो मोशन में जो एनर्जी वो लूज करते जब दे आर कोलाइड विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो दिस द रेजिस्टेंस इज अ हायर व्हेन लेंथ इज ए ग्रेटर. रेजिस्टेंस इज ए हायर व्हेन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ए स्मॉलर. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इन दिस वे द R is equal to रो L डिवाइड बाई ये फॉर्मूला. और इसके पहले बाद में करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था. तो ये इसको चलो वो पहले प्रीवियस फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था उसी को देखते हैं क्या था. तो R इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू दिस टाउ. ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था पहले. तो ये फॉर्मूला में R क्या था, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. ऑल दिस आर दी कांस्टेंट. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सभी वैल्यूज कांस्टेंट और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वी कैन राइट दिस इन R इन प्लेस ऑफ द R दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टिविटी. तो R का वैल्यू रखते हैं. R का वैल्यू क्या है, रो L डिवाइड बाई ए एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू दिस द टाउ. यहाँ से ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कैंसिल होगा. रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ. सो द रेजिस्टिविटी, higher conductor resistivity increases, higher the resistivity, their heating effect will be more. So high resistivity material is used for the making the heating devices like a nichrome, chromium, nichrome. It is a mixture of the nickel, chromium and iron. This known as one alloy which having a high resistivity.
दिस मटेरियल इज यूज एज ए हीटिंग एलिमेंट या कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, ऑल दीज आर alloy having a higher resistivity, so these are used as a heating elements or this purpose is a heating element. So अभी यहाँ देखो क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो ये कभी इसको रिलेशन में पूछेंगे, कभी इसको पूछेंगे, तो ये दोनों भी याद रखना, तो ये इस तरीके से आता है. ओके, देन व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, what happened to the resistance of wire of length is doubled. अगर किसी वायर का डबल बाई मोल्डिंग इट, इसको मोल्ड किया और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये डबल किया, हाफ किया, रेजिस्टेंस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, इस तरीके से क्वेश्चन आता है. या कभी ये भी पूछ सकता है कि क्या होगा अगर लेंथ डबल किया तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन रिड्यूस किया कितना आएगा. तो ये सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से करते हैं. तो जैसे ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ध्यान रखना किसी भी आ गया तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस, original resistance R is equal to rho L divided by A. This is equation number 1. When length is increased, length increased कितना 2 times, 2 गुना अगर लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ अगर 2 गुना बढ़ाएंगे तो न्यू L डैश इक्वल टू 2 times ऑफ ए L, 2 गुना बढ़ा. जब लेंथ 2 गुना बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली उसी मटेरियल का ये मटेरियल इसका लेंथ अगर 2 गुना करेंगे तो इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इट विल बी डिक्रीज, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा. सो न्यू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, डबल लेंथ किया तो ये बाई 2 होता है. सपोज लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, अगर ये 3 टाइम्स लेंथ इंक्रीज किया तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन न्यू आएगा ये बाई 3. जितना टाइम्स लेंथ बढ़ाएंगे उतना नंबर से एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को क्या करना है, डिवाइड करना है. तो इस तरीके से ध्यान रखना. या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड बाई फोल्डिंग द वायर, वायर को फोल्ड किया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन डबल किया तो लेंथ हाफ हो जाएगी, तो एरिया क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स होगा. दिस इज द रिलेशन. सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश equal to rho. The resistivity is depends on the nature of the material. अगर ये कॉपर मटेरियल है, ये कॉपर मटेरियल है तो सभी कॉपर के लिए रो का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा. अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर हुज लेंथ इज अ डबल बाय मोल्डिंग इट. वायर तो एक मटेरियल है तो वही रहेगा, तो उसका रेजिस्टिविटी हमेशा क्या आएगा, वही वैल्यू आएगा. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. सभी कॉपर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, लेकिन मटेरियल चेंज करेंगे, जैसे कॉपर टू एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कॉपर इसका वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए रेजिस्टिविटी डिफरेंट रहेगा, कॉपर के लिए डिफरेंट रहेगा. लेकिन सभी कॉपर से वायर से उसका लेंथ बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो इट विल नॉट ए चेंज. तो एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टिविटी. तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना. So this new R dash is new R dash equal to new रो सेम है, L कितना आएगा, L डैश आएगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A डैश, इसी को वैल्यूज रखेंगे. R डैश इक्वल टू रो L कितना किया 2L, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना हो गया A बाई 2. तो ये क्या कैसे जाएगा, अभी दिस विल बी है, ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 होगा 4 और रो L डिवाइड बाई A. तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा 4 टाइम्स, इट विल बी ए 4 टाइम्स. अगर व्हाट हैपन तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ कितना दिया, कुछ दिया तो, या यहाँ 20 दिया, पहला कितना था 20, तो 20 टाइम्स ये मल्टीप्लाई बाई 20 करके नया वैल्यू मिलेगा. इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन होता है,
लेकिन ध्यान रखना है। और इसका और एक क्वेश्चन है इस टाइप में, क्या किस अलग अलग टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ये 2-3 क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करो तो कैसा आता है। देखो, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ए वायर ऑफ लेंथ 100 और 120 सेंटीमीटर, a wire of length 120 centimeter and resistance is 20 ohm। अगर उसका 20 ohm लेंथ है, रेजिस्टेंस है, वायर लेंथ 120 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ohm is stretched यूनिफॉर्मली, एक जैसा, मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम है, यूनिफॉर्म है, स्ट्रेच यूनिफॉर्मली टू द लेंथ, टू द न्यू लेंथ 3 times द ओरिजिनल लेंथ से ये 3 times। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट इज ए न्यू रेजिस्टेंस, अगर उसको 3 times किया, व्हाट इज ए न्यू रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, दिस वैल्यू इज ए 20 ohm। जब इसको 3 times किया, अभी ये वैल्यू की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन दिया है तो उसका हमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं। न्यू R डैश निकालना है तो क्या है, कितना बार किया, 3 times, तो रो इक्वल टू 3L, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना 1/3 हो जाएगा, स्ट्रेच किया तो ये क्या आएगा 9 times दी R, कितना आएगा 9 times दी R। कभी इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू, और रजिस्टिविटी भी दिया है, इसका रजिस्टिविटी का वैल्यू दिया, L दिया, A दिया, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू हमेशा कैसा आना चाहिए, ओहम मीटर में चाहिए, तब रेजिस्टेंस ओहम में आएगा। लेंथ कैसा होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें बराबर आएगा, ये ओहम मीटर में होना चाहिए, लेंथ मीटर में, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मीटर का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, ओहम में आएगा। तो इस तरीके से कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। The resistance value we can find out by using the color code, or directly we can measure the value of the by using the multimeter या measuring devices। किसी measuring devices या multimeter से हम resistance का value डायरेक्ट measure कर सकते हैं। तो resistance का पार्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो कंट्रोल दी करंट। तो ये resistance का value रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे बैंड से रहते हैं। अगर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस विच हैविंग ए कलर्ड बैंड्स ओवर द रेजिस्टेंस। वो कलर बैंड से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दीज आर द कलर बैंड्स ओवर द रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या कैसे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द कलर बैंड्स। तो ये value of the R, value of the R using a color code। कलर कोड का यूज करके हम इसका कलर कोड से वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ये भी एक 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किस तरीके से व्हाट इज द कलर, ये इतना वैल्यू थी, इसका सेकंड कलर कितना है, थर्ड कलर करे, या कलर से वैल्यू फाइंड करना, इस तरीके से आता है। तो रेजिस्टेंस, अगर कोई भी रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जनरली 4 बैंड होते हैं, एक फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड, एंड एक वाइडली सेपरेटेड बैंड होता है। रेजिस्टेंस इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, इसका 2 टर्मिनल होता है, ए एंड बी, इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। तो रेजिस्टेंस में एक बैंड से, मान लो पहला बैंड ये रेड है, दूसरा
दूसरा ब्लैक है और तीसरा बैंड ये ब्लू है। तो इस तरीके से इसके ऊपर बैंड्स रहते हैं और ये जो बैंड्स है ये सभी क्लोजली रहेंगे, तीनों बैंड क्लोजली, और जो थर्ड रहता है ये फोर्थ बैंड है वो थोड़ा वाइडली सेपरेटेड रहता है दिस वे। दिस इज द फर्स्ट बैंड। ये जो वाइडली सेपरेटेड बैंड है ये इसे अपोजिट साइड में से नंबरिंग करना है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। अब ये बैंड का कलर पता चलेगा और कहाँ से शुरू करना है, तो शुरू करना है हमें इसका अपोजिट साइड जाना है। यहाँ कौन सा फोर्थ बैंड रहेगा, एक तो गोल्ड कलर रहेगा, सिल्वर रहेगा या नो बैंड रहेगा। और ये इसका मतलब है इसका टॉलरेंस है, दिस इज ए टॉलरेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस। अब यहाँ फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड क्या मिला हमें, तो पहला बैंड है दिस इज द रेड, दूसरा ब्लैक, तीसरा दिस इज द ब्लू। ये तीन बैंड हमें पता चला कि ये तीन बैंड है रजिस्टर्स के ऊपर, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू के लिए नंबर है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, violet and white. Okay. This is the gray and then white, इस तरीके से। इसका नंबर है, ये पहले का ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, 2, 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। तो 0 to 9 ये नंबर्स हैं। अगर इसको याद रखना है तो हमें एक सेंटेंस यूज करना है इसको, जैसे द बीबी रॉय, ये नाम है बीबी रॉय हैज, और बीबी रॉय ग्रेट, कैपिटल में लिखते हैं इसको, ग्रेट ब्रिटेन हैविंग ए वेरी गुड वाइफ। ये सेंटेंस मोस्ट ऑफ द बुक में दिया है, तो ये याद करके भी हम लिख सकते हैं। ये इसका ऑर्डर कैसे लिखना है, यहाँ से ये ऑर्डर है इसका लिखने के लिए, बी बी ब्लैक ब्राउन, रॉय आर इज द ऑरेंज रेड, ओ फॉर द ऑरेंज, दिस इज द फर्स्ट कलर, 0, 1, 2, 3, 4, येलो इज अ 4, ग्रीन ये ग्रेट का जी लिख लेना है ग्रीन के लिए, दिस इज द 5, ब्लू 6, इसको छोड़ दो, और उसके बाद वायलेट 7, ग्रे 8 एंड वाइट इज ए 9। तो ये सेंटेंस याद करके हम इसको नंबरिंग याद रख सकते हैं कि ब्लैक टू वाइट नंबर्स अरेंज करना है 0 to 9। अब चलो इसका वैल्यू समझ लो जल्दी, कैसे करते हैं। पहला कलर कौन सा है, रेड है, रेड का वैल्यू कितना है 2, तो 2 एज इट इज लिखा मैंने 2। ब्लैक के लिए कितना है, ब्लैक 0, तो ये दूसरा वैल्यू भी एज इट इज लिखना है। और तीसरा कौन सा कलर है, ब्लू, तो वो मल्टीप्लाई बाय 10th पावर करना है। ब्लू का कितना है 6, सो यहाँ 10 लेना है, 10 का पावर 6, क्योंकि ब्लू का नंबर कितना है 6, सो थर्ड कलर जो है 10th का पावर 10 रेज़ टू दी पावर उतना लेना है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 20 इंटू 10 रेज़ टू 6 ओहम। 10 रेज़ टू 6 को बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, मेगा, तो मेगा, दिस इज ए मेगा ओम, 10 रेज़ टू 6 20 मेगा ओम। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है। अब चौथा बैंड, फोर्थ बैंड का वैल्यू क्या मतलब है, अगर यहाँ गोल्ड है,
यहाँ बैंड अगर गोल्ड है तो इसके ऊपर टॉलरेंस होता है 5% प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10% सिल्वर के लिए, और नो बैंड है तो 20%। तो मतलब क्या है, टॉलरेंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोलिजन क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज होगा। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर की वजह से इसका वैल्यू कितना चेंज होता है, हो सकता है अगर ये बैंड फोर्थ बैंड गोल्ड कलर है तो ये वेरिएशन ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू आया उससे एक्चुअल वैल्यू से ये इट मे बी वैरी 5% अगर गोल्ड कलर है तो। अगर सिल्वर है तो 10% वैल्यू वैरी कर सकता है, नो बैंड है तो 20% ये वैल्यू वैरी कर सकता है। किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। इट मे बी वैरी द वैल्यूज, इसका मतलब ये है। अब दूसरा एक एग्जांपल समझाते हैं यहाँ, ये रेजिस्टेंस, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड। चौथा बैंड तीसरे से थोड़ा वाइडली अलग से रहता है, ये तीनों क्लोज है। मान लो इसका ये ग्रीन है, पहला ग्रीन, दूसरा वायलेट और जो चौथा है वो रेड है, और दिस इज द सिल्वर। इस तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ग्रीन कितना है, पहला वैल्यू 5, ग्रीन का वैल्यू 5 है। उसके बाद वायलेट है, वायलेट का कितना है 7। उसके बाद रेड है, रेड मतलब 10 टू द पावर तीसरा कलर कितना 2, और सिल्वर कलर है तो प्लस माइनस कितना आएगा 20%, मतलब 5.7 क्या लिखेंगे किलो ओम, प्लस माइनस 20%। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखते हैं और फाइंड करते हैं, किससे, कलर कोड से। चलो अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमने देखा कि इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये समझ में आया होगा, आसान है। कभी कभी एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते व्हाट इज द रेजिस्टेंस हैविंग ए 3 बैंड्स आर दी रेड, ग्रीन, वायलेट एंड रेड, एंड लास्ट बैंड फोर्थ बैंड या इट इज ए सिल्वर कलर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये आराम से हम लिख सकते हैं इसको याद करके। तो दूसरा, द रेजिस्टेंस, value of the resistance depends on the temperature. Temperature dependence of the resistance. We can write the title. This is a temperature dependence of R के ऊपर क्या टेम्परेचर का डिपेंड। मैंने यहाँ लिखा था R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ, or R is a inversely proportional with the tau. Tau, this is a relaxation time. This known as a relaxation time. Relaxation time means time lapse between the two successive collision. जब collision दो successive collision का बीच वाला distance, जब temperature increase होगा, relaxation time is a time lapse between two सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन का डिस्टेंस। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन मोशन विल बी फास्ट, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन अगर फास्ट हो जाएगा तो वो कोलिजन का टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। सो द टाउ दिस वैल्यू इज ए डिक्रीजेस, दिस वैल्यू विल बी डिक्रीज। ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द value of the R it increases. So effect of the temperature, when temperature increases resistance value is a increases, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर। तो ग्राफ का नेचर क्या आएगा, अब ये यहाँ V है, यहाँ I है, तो V R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर when temperature increases, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा।
वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होगा? जब V इंक्रीज होगा और I डिक्रीज होगा। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यह वैल्यू R कब बढ़ेगा? R बढ़ेगा जब ये वैल्यू कम आएगा और मतलब इट विल बी यहाँ नीचे झुकेगा ये, इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट इट विल गो सम दिस वैल्यू इन दिस वे। ध्यान रखना यहाँ टर्म ये इंपॉर्टेंट है, कभी ये वैल्यू यहाँ रखा ये रखा तो उस तरफ जाएगा वो, ये भी ध्यान रखना है। अब ये समझ गए रेजिस्टेंस का कि रेजिस्टेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और कितना बढ़ता है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे R चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन ए टेम्परेचर। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए हमें, खाली इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बाय यूजिंग। तो RT क्या है? RT इज ए resistance at temperature T degree Celsius, or this is temperature resistance at 0 degree Celsius. Alpha is known as a temperature coefficient. This is a temperature coefficient, and delta T is a change in temperature. तो इससे हम कौन सा टेम्परेचर पर कितना टेम्परेचर पर कौन सा कितना रेजिस्टेंस रहेगा ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और कितना टेम्परेचर चेंज करने से कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा ये फाइंड करने के लिए ये रिलेशन। यहाँ अगर मेटल्स है तो अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा और हाई आता है फॉर द कंडक्टर, एंड सेमीकंडक्टर दिस वैल्यू इज ए low and negative value for the temperature coefficient. So in this way we can find out the value of the change in temperature with the resistance. कितना वैल्यू मतलब कितना टेम्परेचर चेंज होने से कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर और इसका कुछ सम कॉमन ग्राफ देखेंगे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर कॉपर के लिए ग्राफ देखते हैं, फॉर द कॉपर का व्हेन रेजिस्टिविटी वर्सेस रो वर्सेस टेम्परेचर, अगर ये ग्राफ देखेंगे तो दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ कॉपर के लिए। और दूसरा यही ग्राफ अगर हम दूसरा मटेरियल है सेमीकंडक्टर, और यहाँ जो अलॉयज यूज करते हैं नाइक्रोम, इसके लिए अगर नेचर ऑफ द ग्राफ देखेंगे तो ये रेजिस्टिविटी रो और ये टेम्परेचर, सो इस तरीके से ग्राफ आएगा। फॉर द सेमीकंडक्टर द नेचर ऑफ द ग्राफ इट विल बी दिस इज द रो और ये टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो ये नेचर ऑफ द ग्राफ से ये किसका है? कॉपर के लिए। और ये कौन सा है? दिस इज द 2 ऐसा वैल्यू इसका, और ये 200 टेम्परेचर 300 400 इस तरीके से ये वैल्यू जाएगा 50 100 टेम्परेचर, और दिस द वैल्यू दिस इज ए क्लोज टू द 1 और ये 0 है। तो ये ग्राफ कॉपर का, दिस इज द कॉपर, दिस इज द ग्राफ फॉर द alloys like a high this a nichrome, this is a alloy of a निकेल, क्रोमियम और आयरन। इसके लिए ये ग्राफ बनता है रेजिस्टिव से, और दिस इज फॉर द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है, लेकिन मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। और कितना वैल्यू कितना टेम्परेचर चेंज होने से चेंज इन टेम्परेचर इट इज डेल्टा टी इक्वल टू इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरीके से
कितना टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, ये रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। आर टी दिस इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा इज नोन एज ए टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर मटेरियल है ओम्स लॉ फॉलो करता है, दिस नोन एज ओमिक कंडक्टर्स। All the metals are the ohmic conductors, means exactly they are following the Ohm's law. V is directly proportional to I. This known as Ohm's ohmic conductors, or conductors which are not following the Ohm's law, this is known as a non-ohmic conductors. So non-ohmic conductors कौन है? So all the semiconducting devices, सभी semiconducting devices है। For example अगर हम डायोड की बात करते हैं तो ये इसका V और ये I, इसका नेचर ऑफ द ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये दिस नॉट ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स इट इज नॉट फॉलोइंग दी ओम्स लॉ, दिस नॉन एज ए नॉन ओहमिक कंडक्टर। और ट्रांजिस्टर का देखेंगे तो नेचर ऑफ द ग्राफ इस तरीके से आता है, दिस इज द I और ये V। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मीन्स इट इज नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ, दिस नॉन एज ए नॉन ओहमिक कंडक्टर। Conductor which is following the Ohm's law, graph is a straight, V is directly proportional I, this known as ohmic conductor, and these are known as a not following the Ohm's law, this known as a non-ohmic conductor। तो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद आगे सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।